यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन भी मिल जाए हम लोग को, उसके साथ में कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो होती हैं वो कम से कम मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो होती हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो कम से कम मिलेगा तो ज़्यादा ठीक है। वेरी गुड। तो सर यहाँ पे एक अगर हम ऐसी काउंटिंग करते हैं, व्हेन वी मूव लाइक दिस then we have substituent on the second carbon, we counting first carbon in this, second carbon and third carbon, 4 5 6 and 7 carbon. Okay, there are 7 carbon. When we have 7 carbon in this compound, then we get a longest chain. There is a longest chain of 7 carbon, and in the 7 carbon this is main chain, and in the main chain on the second carbon up carbon means methyl CH3 left, and here CH2 and CH3 means ethyl, here ethyl present. ओके, तो हम लोग जब काउंटिंग कर रहे थे तो उस टाइम हमने सेकेंड कार्बन पर एक मेथाइल छोड़ दिया काउंटिंग में, और यहाँ पे क्या छोड़ दिया, एक एथाइल छोड़ दिया। अब हम नेमिंग करेंगे तो अब नेमिंग क्या होगी आप बता सकते हैं सर? ऑन द सेकेंड कार्बन मेथाइल एंड ऑन द थर्ड कार्बन एथाइल, बट ई कम फर्स्ट है ना, ई जो होता है वो पहले आता है। ठीक है, तो ई जब फर्स्ट पहले आता है हमारा ई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 एथाइल and on the second carbon methyl present, then 2 methyl. How many carbons? 7 carbons in the chain, then 7 means hept, and here is only single bond, then the name of single bond we use as a suffix ane, as a suffix we use ane. This is the name of this IUPAC. वेरी गुड, ये IUPAC इसका नाम, इसका IUPAC नेम हो गया। वेरी गुड, अभी आप लोग को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। कैन आई रफ, मैं इसको रफ कर सकता हूं। वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस, कार्बन 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 एंड कार्बन, हियर इज अ क्लोरीन एंड हियर इज अ कार्बन, another carbon also present, carbon 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 chain. Very good, this is your chain. Write down the IUPAC name of this chain. First of all, we count from longest chain, we look for longest chain, then 1 2 3 4 5 6, there are only 6 carbons, and here 1 2 3 4 5 6 7 8 9, here is 9 carbon. Okay, this is your correct counting. And when we go like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9, we also get 9 carbons. Then this counting is also correct and this is also correct, because on the third carbon chlorine present here, and on the third carbon chlorine also present when we count from here like this. Okay, then write down the name of this compound, write down. Okay class, I write. Okay, this is your correct counting. We move like this. This is also correct, हम एक ही तरफ से कर सकते हैं कि इसलिए इधर से कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें क्लोरीन हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट छोड़ गया है, उसके साथ में सर ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब होता है एथ, लेकिन यहाँ पे छोड़ गया है एज अ, ये लेफ्ट हो चुका है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो इल वर्ड यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एथाइल, दिस इज एथाइल, and this is halogen, and in halogen we left then we use chloro, this is chloro, CnClO chloro। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा कि सही है या फिर गलत है। ठीक है, और यहाँ पर एक मेथाइल और भी छोड़ गया है, here is a methyl, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं छोटा हुआ है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं छोटा, हमने इस तरह से काउंटिंग करी, हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन मिल गई और कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारा नहीं छोटा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो सी आता है, फिर सी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, देन एम लिखेंगे। ठीक है, तो ऑन द थर्ड कार्बन
1 2 3, here is fourth carbon, this is fourth carbon, okay, 4 5 6 7 8 9, okay, there are 9 carbon, only 9 carbons, then we use word non-ane, and on the third carbon chlorine present, and also on the third carbon ethyl present, then 3 chloro and 3 ethyl, and on the fifth carbon methyl present, fifth carbon. Am I right? This is correct or incorrect? We use like this dash. Good. Are you getting my point? Yes, very good. We have a question. This is your chain, carbon chain, and here is double bond, here is also double bond, and here is also double bond. Chlorine here present and here bromine present. Then what is the name of this compound? What is the name of this compound? Write down the name of this compound. Try to solve. Okay class, I write the name of this compound. First of all, sir, here is a double bond, here double bond, here double bond, and here double bond. And you know well, a double bond is stronger than single bond. You know very well, double bond is stronger than also triple bond, है ना? जो डबल बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सिंगल बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग होता ही है. यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है सर? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन आफ्टर सिंगल बॉन्ड, है ना? तो सबसे पहले हम लोग को प्रियोरिटी देनी चाहिए, हम लोग को किसको? डबल बॉन्ड को देनी चाहिए. डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. डबल बॉन्ड से पहले कौन स्ट्रॉन्ग होता है सर? डबल बॉन्ड से ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्ग होता है? फंक्शनल ग्रुप. यू नो वेरी वेल अबाउट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बारे में आपको पता होगा. फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं, ये फंक्शनल ग्रुप होती हैं. तो फंक्शनल ग्रुप अगर मिल जाता है किसी भी कंपाउंड में तो उससे नंबरिंग तो उधर ही से करना स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है? तब हम भूल जाएंगे कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, वो सब भूल जाएंगे हम लोग जब हमारे पास क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा. व्हेन वी हैव फंक्शनल ग्रुप देन वी फॉरगेट ऑल थिंग्स, ठीक है? हम सब कुछ भूल जाएंगे जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा. बट हियर इज नो फंक्शनल ग्रुप, देन वी नो here double bond is strong. Then where we start counting? Very good. Where we start counting? सर कहाँ से स्टार्टिंग करें काउंटिंग की? क्योंकि अगर हम काउंटिंग करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन तो चाहिए ही हमको, उसके साथ में क्या चाहिए हमको? डबल बॉन्ड भी मिल जाए सर. डबल बॉन्ड मिल जाएगा मान लेते हैं, ठीक है? डबल बॉन्ड मिलने के बाद क्या करेंगे हम? जैसे हम काउंटिंग करते हैं लॉन्गेस्ट चेन में तो ऐसी कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड हम कवर कर पाएँ उतने कवर कर लें, ठीक है? जब हम काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड जो होते हैं उसको कवर कर लेंगे अगर काउंटिंग में तो हमारे लिए अच्छा है. यहाँ पे 3 जगह डबल बॉन्ड है. देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स इन दिस कंपाउंड. देन हाउ वी कवर 3 डबल बॉन्ड? दिस इज इम्पॉसिबल इन लॉन्गेस्ट चेन बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. चेन इज नॉट ब्रेक, है ना? चेन भी ब्रेक ना हो ये भी हम लोग को ध्यान में करके चलना पड़ेगा. चेन भी हमारी ब्रेक ना हो तो हम क्या करेंगे सर? चेन भी ब्रेक ना हो और कैसे हम लोग यहाँ पे कर भी ले काउंटिंग? तो ये करें हम लोग कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चलना, हम ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं मान लेते हैं. तो दिस इज योर मेन चेन, है ना? ये आपकी क्या हो जाएगी? मेन चेन हो जाएगी. मेन चेन हो जाएगी, उसके साथ में सर ये जो है कार्बन जो है ये छूट जाएगा, यानी कि लेफ्ट हो जाएगा काउंटिंग में. तो देन हम क्या करेंगे सर यहाँ पे? तो ये हमारा डबल बॉन्ड के साथ में एक कार्बन लेफ्ट हो गया काउंटिंग से, तो इसका हम नाम लिखेंगे.
तो इसका नाम एक स्पेशल टाइप का नाम होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जब भी किसी मेन चेन से डबल बॉन्ड का पहला कार्बन छूट जाता है, पहला कार्बन अगर 1 कार्बन है तो उसको मेथ बोलेंगे, ठीक, मेथ बोलेंगे, इसका क्या नाम होगा, मेथ होगा, ठीक, मेथ, ठीक है। लेकिन इसको डबल बॉन्ड अगर डायरेक्टली अटैच रहेगा हमारी मेन चेन से तो उसको मेथिलीडीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेथिली, METHA, मेथिलीडीन, ठीक है, मेथिलीडीन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। व्हेन वी हैव 2 कार्बन्स, अगर यहाँ पे एक कार्बन और भी होता है ऐसे कुछ ऐसे, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा होता, उसके साथ में एक कार्बन और होता, तो इसका क्या नाम हो जाता, इसका नाम हो जाता है एथिलीडीन, है ना। यहाँ पे मेथ की जगह पर क्या यूज कर देते, एथ यूज कर देते, मेथ की जगह पर एथ यूज कर देते। देन अगर यहाँ पे 3 कार्बन होता सर तो क्या करते हम, तो यहाँ पे प्रॉप यूज कर देते, है ना। तब हम नहीं देखेंगे हर जगह डबल बॉन्ड हो, केवल हमारी जो मेन चेन है, मेन चेन से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है, जैसे मान लेते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है मेन चेन से, ठीक है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से छूट रहा है तो हम ध्यान ये देंगे कि उसका पहला कार्बन जो कनेक्ट है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट है कि नहीं, तब उसका नाम ऐसे मेथिलीडीन टाइप का हो सकता है। यानी इसका जर्नल नेम बोल सकते हैं एल्केलिडीन, है ना, एल्केलिडीन। इसका जर्नल नेम क्या हो जाएगा, अगर हमारी मेन चेन कोई भी ऐसी है ना, ये कॉन्सेप्ट में आप इसको नोट कर लीजिएगा। व्हेन यू हैव अ मेन चेन, मान लेते हैं ये आपकी मेन चेन है, इसी में ऐसे कहीं कार्बन ऐसे कनेक्ट है, एक ऐसे कार्बन कनेक्ट है, ढेर सारे कार्बन कनेक्ट है मेन चेन में। तो सर यहाँ पे अगर मेन चेन में कार्बन कनेक्ट है, उसके साथ में अगर हम देखते हैं कहीं भी डबल बॉन्ड के साथ में एक कार्बन है, तो ये एज ए इसका नाम लिखा जाएगा एल्केलिडीन जैसा। इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा, एल्केलिडीन, एल्केलिडीन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केलिडीन हो जाएगा इसका। तो सर एल्केलिडीन हो तो जाएगा नाम, ठीक है। तो यहाँ एल्क का मतलब भी तो होता है रूट वर्ड, एल्क का मतलब भी तो रूट वर्ड होता है, यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ एल्क की जगह पर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन था तो यहाँ मेथ वर्ड यूज किया गया। बट अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए, प्रॉप वर्ड यूज करना चाहिए, प्रॉप। तो हम इसी को सही मान लेते हैं, ठीक है, यही हमारा एक कंपाउंड मान लेते हैं। अगर वो वाले कंपाउंड के हिसाब से आपने किया होगा तो उसको आप मेथिलीडीन मान लेना, अगर इसके हिसाब से किया है तो उसको प्रोपिलीडीन मान लेना। अब हमने क्वेश्चन चेंज कर लिया, मान लीजिए प्रोपिलीडीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रफ नहीं करने का है, बार बार गंदा नहीं करने का मतलब है कोई, यहाँ पे प्रोपिलीडीन हो जाएगा। इसका जनरल कॉन्सेप्ट ये लिख लीजिएगा, अगर किसी भी मेन चेन से हमारे किसी भी मेन चेन से अगर डबल बॉन्ड के साथ में एक कार्बन छूट जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्केलिडीन बोलेंगे। जहां पे एल्क का मतलब क्या होगा सर, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप, हेक्स, जो भी होता है ना, सारी जो रूट वर्ड होते हैं, ये रूट वर्ड है आपका, जो एल्क है ये क्या है, रूट वर्ड है आपका, रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड। वेरी नाइस, ओके सर, हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। इसको नाम हम प्रोपिलीडीन रख देंगे इसका नाम। और ये भी ध्यान रहे आप लोग को, अगर ऐसे चेन जाती रहे, लंबी हो जाए, ऐसे और लंबी होती चली जाए, तो कोशिश ये करेंगे क्या पता थी हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए। यहाँ पे तो ऐसा इम्पॉसिबल था, लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिल रही थी, देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे ही आते हैं तब भी हमारी लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। बट इसमें और सारे कार्बन ऐसे लगा दें, हम ऐसे और भी कार्बन लगा दें, ऐसे लगाते चले जाए ऐसे कार्बन, तो सर अगर हम ऐसी काउंटिंग करेंगे देन हमें डबल बॉन्ड भी काउंटिंग मिल जाएगा और उसके साथ में लॉन्गेस्ट चेन भी मिल जाएगी। तब हमारी ये वाली जो चेन मेन चेन थी वो इनकरेक्ट हो जाएगी और हमारी ये चेन करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम 3 कार्बन मान के चलते हैं, देयर आर 3 कार्बन्स ओनली, यू हैव ओनली 3 कार्बन्स, देन प्रोपिलीडीन, ठीक है, ये प्रोपिलीडीन ही है हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड क्लास, ऑल ऑफ यू डन। तो यहाँ पे क्लोरीन है सर, हियर इज ब्रोमीन, क्लोरीन मीन्स क्लोरो एंड ब्रोमीन मीन्स ब्रोमो, है ना, क्लोरो CHLOR, क्लोरो एंड देन ब्रोमो, ठीक है, ये क्लोरो हो गया आपका, ये ब्रोमो हो गया। वेरी गुड सर। तो इसका नाम सर अब कैसे लिखेंगे हम लोग, ये पूरा तो हमारा समझ लीजिए आपका ये छूट गया, जो चेन में जो छूटा हुआ था उसका नाम आपने प्रोपिलीडीन रख दिया। तो सर P पहले आता है या C पहले आता है या B पहले आता है इन अल्फाबेट? इफ यू स्टडी इन नर्सरी क्लास और LKG देन यू नो विच कम फर्स्ट। सर ब्रोमो पहले आता है, आप ज़्यादा दिमाग मत बताओ, हम लोग को पता है ना। तो ब्रोमीन पता है पहले से आ जाएगा सर यहाँ पे। तो काउंटिंग हम अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्लोरीन आ जाएगा। काउंटिंग इधर से सही है या इधर से सही है, भी हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड पहले यहाँ पर भी मिल रहा है, डबल बॉन्ड पहले यहाँ पर भी मिल रहा है। तो काउंटिंग इधर वाली सही है या इधर वाली काउंटिंग सही है सर?
तो काउंटिंग सर इधर वाली सही है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो है ना वो पहले मिल रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन ऑन द थर्ड कार्बन मिलेगा। अगर काउंटिंग करेंगे 1 1 2 3, तो ऑन द थर्ड कार्बन ब्रोमीन कनेक्ट है ना, तो थर्ड कार्बन ब्रोमीन कनेक्ट है। बट व्हेन वी काउंट लेफ्ट साइड 1 2, ऑन द सेकेंड कार्बन क्लोरीन कनेक्ट, देन दिस काउंटिंग इज करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 है ना। here is 6 carbon in main chain and chlorine, bromine and propylene are substituent। substituent होने के बाद में उस डबल बॉन्ड का substituent हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड का substituent हो, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कुछ भी हो, सबके लिए कोई भी वो नहीं है। यहाँ पे अल्फाबेट रूल के हिसाब से चलेगा। कोई यहाँ पे स्ट्रांग नहीं मानेंगे, IUPAC किसी को स्ट्रांग नहीं मानती है और किसी को वीक नहीं मानती है। जब सब्स्टिट्यूएंट हो गया सबको एक नज़र से देखती है और सबको अल्फ़ाबेटिकली नाम रख देती है सबका। जैसे क्लास में ये देखकर अल्फ़ाबेटिकली नाम नहीं रखा जाता रजिस्टर में कि कोई बच्चा पढ़ने में तेज है या धीमा है, उसका अल्फ़ाबेटिकली नाम इसे रखा जाता है ताकि जो है मतलब कोई इसमें वो कोई दिक्कत ना हो किसी को कि मतलब सर मेरा नाम पहले क्यों नहीं है, उनका नाम पहले क्यों नहीं है। नॉर्मली तो अल्फ़ाबेट रूल चल गया, वैसे ही यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट रूल चला देंगे हम। तो सर ब्रोमीन सबसे पहले लिखते हैं, आपने बहुत समझाया हम लोग को, अच्छे समझ में आ गया। ब्रोमो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है, 4 ब्रोमो एंड 2 क्लोरो। ऑन द थर्ड कार्बन सर प्रोपेलिडीन प्रेजेंट, देन 3 प्रोपेलिडीन, ओके। ऑल ऑफ यू आर इनकरेक्ट, ओके। आप लोगों ने मेथिलिडीन लिखा था और हमने प्रोपेलिडीन लिखा है। प्रोपेलिडीन करेक्ट है, आप लोग का मेथिलिडीन गलत था, है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे सर हो गया प्रोपेलिडीन और 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन मीन्स क्या होता है, हेक्स होता है। लेकिन सर ये हेक्सेन नहीं होगा, आपने बताया था हम लोग को हेक्सेन तब लगता है जब पूरे मतलब मेन चेन में हमारे सिंगल बॉन्ड ही होता है। बट सर यहाँ पे क्या है सर, डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड है सर, तो क्या करेंगे हम, तो डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ लगा है उसके लिए हम उसका नाम ले देंगे। डबल बॉन्ड को एज अ सफिक्स यूज करते हैं, इन वर्ड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं IUPAC नेमिंग में। वेरी गुड सर, तो यहाँ पे लिख देंगे सर इन, ठीक है सर, लिख दिए इन। लेकिन सर कहाँ कहाँ लगा है इन, तो यहाँ पे ऑन द फर्स्ट कार्बन एंड ऑन द फिफ्थ कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो यहाँ पे पहले कार्बन पर या दूसरे कार्बन पर कनेक्ट है, लेकिन हम छोटा वाला मान के सकते हैं कि पहले पर कनेक्ट है। और यहाँ पर 5 और 6 के बीच में है, तो इसको क्या करेंगे हम 5 वाले को मान लेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन यहाँ पे लिखेंगे 1,5, कितनी बार जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है। देन वी यूज अ वर्ड डाई, अगर 2 बार कोई जुड़ी होती है इसको हम डाई बोलते हैं, 3 बार जुड़ी होती है इसको बोलते हैं ट्राई, ठीक है। आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो हेक्स 1,5 डाई एन, ओके, this is correct IUPAC naming। if you are interested then एक स्क्रीनशॉट और राइट डाउन, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। All of you have done, very good sir। Okay class, we have a compound like this। all of you off your mic, don't disturb the class। if you have any problem then comment me, okay। ये ऑप्शन भी मैंने दिया है, ऐसा भी ऑप्शन नहीं मिलता है जल्दी से, ठीक है। स्कूल की ऑनलाइन क्लास में अगर मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट कर दिए, मैं देख लूँगा, तो आप लोग डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, जो नहीं समझ आ रहा है और कमेंट कर दीजिए नीचे, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
बट वैसे करेंगे तो डिस्टर्ब होगा ना। 3 4 5 6, देयर आर 6 कार्बन्स सर। डबल बॉन्ड हियर एंड हियर इज ट्रिपल बॉन्ड एंड हियर इज डबल बॉन्ड, देन विच काउंटिंग इज करेक्ट? हम लोग काउंटिंग करेंगे और इसका नाम लिखेंगे। आप लोग बताइए इसका क्या नाम होगा। राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। Here you have CH3, okay? Write down the name of this compound. ओके क्लास, आप लोगों ने कर लिया होगा, जो भी कर लिया होगा। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि हम लोगों को काउंटिंग में हमेशा ये भी नहीं देखकर चलना होगा कि आप लोग हमेशा लॉन्गेस्ट चेन के पीछे पड़े रहें और हमारा डबल बॉन्ड छूट जाए। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जो डबल बॉन्ड होता है वो लॉन्गेस्ट चेन हम कह सकते हैं, वो तो मैंने नहीं बताया था आपको, मैंने यही बताया था आप लोगों को कि डबल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है ट्रिपल बॉन्ड से और स्ट्रांग होता है सिंगल बॉन्ड से भी, और इसकी जो नंबरिंग होती है वो नंबर ऑफ कार्बन से भी ज़्यादा हम लोग को देकर चलना होता है। यानी नंबर ऑफ कार्बन हम लोग बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो वेरी गुड। आप लोग की काउंटिंग गलत है या सही है भी मैं चेक करके बताता हूँ, आप देख लीजिएगा। नंबर ऑफ कार्बन भी हम बाद में देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक फॉर डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन और सिंगल बॉन्ड, है ना। पहले डबल बॉन्ड देखेंगे। डबल बॉन्ड अगर हमारी चेन में 2 बार मिल जा रहा है और चेन थोड़ी छोटी भी मिल जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी चेन को सही मानकर चलेंगे। ठीक है, समझा रही बात आपको? वेरी गुड। तो ये चेन हमारी सही है, दिस इज योर मेन चेन। तो सर ठीक है, आप अगर कह रहे हो ये मेन चेन ठीक है तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखेंगे सर आप? इसका नाम तो हम लोग नहीं जानते लिखना, है ना। एनीवन नो द हाउ वी नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट? ये तो पता ही होगा आपका, ये तो मेथाइल है, दिस इज मेथाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट? एनीवन इन दिस क्लास? Anyone in this class know about the name of this substituent? ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है सर, इसमें कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3। अगर नॉर्मली 3 कार्बन्स, यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी दिस सब्स्टिट्यूएंट? 1 2 3 कार्बन्स। इफ 3 कार्बन्स, इफ वी हैव 3 कार्बन्स देन वी नो, वी यूज वर्ड प्रॉप, है ना। हम लोग को पता है कि हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम होता है सर प्रॉप। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर सर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। सर पहली बात तो ये होता है कि जो मेन चेन है हमारी, उस मेन चेन से जहाँ पर भी हमारा ये कार्बन कनेक्ट होता है उसको हम फर्स्ट कार्बन मान सकते हैं, वहीं से नंबरिंग वहीं से करते हैं। फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा हमारा, ये मेन चेन के बाहर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें नंबरिंग कर रहे हैं हम। वैसे मेन चेन में तो नंबरिंग होगी ही, ऐसी नंबरिंग होगी उसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, बट इन सब्स्टिट्यूएंट आल्सो वी काउंट 1 2 3। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें भी हम लोगों ने काउंटिंग कर लिया। और हमने काउंटिंग किया सर जैसे हम लोग वहाँ पे नॉर्मली नेम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा आपके अकॉर्डिंग, वो बताइए आप। सब्स्टिट्यूएंट भूल जाइए, सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम नॉर्मली होगा 1 2 3 कार्बन है प्रॉप। सर यहाँ पे इन वो लगा है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है आइन, तो कहाँ पे लगा सर? 2 पर, तो लिखेंगे 2 आइन। ठीक है, 2 आइन हो गया सर। ठीक, बट सर ये जो है सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको कैसे जानेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट है? तो यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे इल, है ना, इल वर्ड यूज करेंगे सर। तो यहाँ पे जो इल है सर वाई है और यहाँ पर ई है, इन दोनों जो है सेम पास पास एकदम आ जा रहे हैं। तो इन केमिस्ट्री ए ई आई ओ यू इज अ वॉवेल,
एंड ऑल्सो अ वॉवेल विच इज वाई, है ना। केमिस्ट्री में हम लोग के पास ए ई आई ओ यू के साथ में हमारा जो एक वॉवेल होता है जिसका नाम होता है क्या, वाई, है ना। तो ई और वाई एक साथ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे ई हम हटा देते हैं, ई हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप टू इन आइल, इन आइल, इन आइल, है ना। वाई यानी ई का ई हार्ड कटा मतलब हटा देंगे हम और उसका वाई एल लगा देंगे, ठीक है। तो इसका नाम चलिए लिख के दिखाते हैं आप लोग को हम। वेरी गुड, जिसने किया बहुत सही किया, वेरी गुड। देन अब हम देखते हैं कैसे इसको करेंगे, पूरा पूरा हम आपको बताते हैं। ये मेथाइल है और ये प्रोपाइल है। पहले एम आता है कि पहले पी आता है, बताइए। एनीवन नो? फर्स्ट ऑफ ऑल पी कम और एम, एम है ना, एम पहले आता है सर। तो यहाँ लिख देंगे 2 methyl, 2 methyl एंड ऑन द थर्ड कार्बन। अब थर्ड कार्बन पर एक कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं, इसको जब कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ आ जाती है, कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ आ जाती है, तो वहाँ पे अल्फाबेट के पहले हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं, तब अल्फाबेट के गाड़ी बाद में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वाली जो चीज़ होती है उसको लिख लेते हैं। तो सर कॉम्प्लेक्स जो था हमारा, मतलब छुट्टी ले लो, पहले हम जितनी दिक्कतें हैं उसकी छुट्टी ले लें, फिर आराम से लें, ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है। पहले जितनी खतरनाक चीज़ें रहेंगी उसको हम लिख कर हटा देंगे, फिर नॉर्मली हमारा मेथाइल तो हमको बताइए ना, जो हम लोग को थोड़ी दिक्कत होती है उसको हम पहले लिख देंगे, ठीक। ये कॉन्सेप्ट लेके चलिए आप। तो सर ऑन द थर्ड कार्बन ये है हमारा। तो थर्ड कार्बन में एक कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं, जैसे मैथ में भी हम लोग कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि ब्रैकेट लगा देना होता है मैथ में हम लोग को। तो वैसे ही यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स टाइप का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट वर्ड यूज कर लिया, यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, ब्रैकेट वर्ड यूज कर लिया। ब्रैकेट वर्ड निकल रहा है मुंह से बार बार, ब्रैकेट यूज कर लिया, ठीक है। बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स वी यूज ब्रैकेट हेयर, ठीक है। तो सर देयर आर थ्री कार्बन्स, देन ऑन द थर्ड कार्बन prop टू आइन, और ई नहीं लिखेंगे तो इसका एल लगा देंगे इसी साथ साथ, ठीक है। तो ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, जो ये कॉम्प्लेक्स है जिसको हमने पहले लिख दिया। उसके बाद सर सेकंड कार्बन पे क्या है, मेथाइल है, देन वी यूज मेथाइल वर्ड ऑन द सेकंड कार्बन इन नेमिंग, ओके। उसके बाद सर ये तो हो गया हम लोग को। और यहाँ पे कितने कार्बन से इन मेन चेन, देयर आर 5 कार्बन इन मेन चेन। देन वी यूज पेंट एंड ऑन द फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट मीन्स इन प्रेजेंट, ओके। देन 1,4 पेंट 1,4 डाई इन, ओके क्लास, वेरी गुड। आप लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से क्लास, है ना। इसको भी इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। देन हम क्लास को ऑफ करते हैं, अब फिर कल मिलते हैं आपको, और आप फिर से ऐसे ही रिवाइज करते रहिएगा अच्छे से, नोट्स जो बना रहे हैं और अच्छे से नोट्स बनाते चले जाइए, ठीक है। जो चीज़ ना समझ में आई हो उसको जो है और अच्छे से रिवाइज करिए, जो नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, वैसे भी आप पूछ सकते हैं, आप क्लास में ही पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कोशिश ये भी करिए कि जो ये आईपीएससी नेमिंग बन रही है इसके बाद आप अपनी जो ये स्ट्रक्चर है इसको छिपा लीजिए और इससे बनाने की कोशिश करिए इसको, ठीक है। आपके पास ये रहे दिमाग में, जितने भी आज आपने पढ़ा है अभी तक, जितना मैंने पढ़ाया है, आप लोग का ये होमवर्क है कि आप केवल इसको इस पर फोकस करेंगे नेमिंग पर, और इस नेमिंग से आप स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, ठीक है। इस नेमिंग से हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर बनाना यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले पेंट लिखा है तो 5 कार्बन लगा देंगे ऐसे ही कहीं भी, ठीक है। 5 कार्बन लगा देंगे, फिर उसमें एक एक करके सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करके आइएगा, कल हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्लास में भी करेंगे।